مجمع کی کیفیت ایسی لگتی ہے کہ فوراً دعا مانگ رہے، جتنا ٹھنڈے ٹھار ہو کے تم بیٹھے ہو نا، لگتا نہیں ہے کہ کوئی تقریر کرنے کا ماحول کریں دعا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔
جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. سیٹی بن گئی. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، علماء دین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، تھوڑا سا بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 10 اکتوبر سن 2021 کو دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ اڈا 94 کروڑ لال اسن میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین میرا اور آپ کا دین کے نام پر یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین. تو زندوں والی کہہ دو. میں دیکھ رہا تھا مفتی عبدالواحد صاحب بھی اسی لیے تھکی تھکی گفتگو کر رہے تھے کیونکہ آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، اور تھکے ہوئے مجمع سے بولنا تو ایسے ہے جیسے قبرستان میں دعا پڑھنے والی بات ہو. اس لیے میں آپ کا شروع کے 5-4 منٹ میں ٹیمپریچر چیک کروں گا. اگر تو آپ جاگ رہے ہوئے تو تھوڑی سی جاگتی جیتی گفتگو بھی کر دوں گا، وگرنہ ٹائم پاس کرنا ہمیں بھی آتا ہے. میرے دوستو، اشتہار پہ زیر عنوان تھا سیرت النبی و صحابہ کانفرنس. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ برس میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرایا تھا، اور آج میرا دل چاہتا ہے اگر آپ جاگ پڑے تو میں آج آپ کو نبی کے یار جناب صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں گا. زندوں والی زندوں والی. تھکنا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، روزانہ 2-2 3-3 جلسے کرتے ہیں، رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا، بے وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے پھولوں کی طرح چہک اور مہک کر آتے ہیں، اور آپ 5-10-20 کلومیٹر کا سفر کر کے ایسے تھکے لگے ہیں جیسے مدینے سے پیدل آئے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں بازوق آدمی ہوں اور بازوق مجمع چاہتا ہوں. ہنستا مسکراتا آدمی ہوں، ہنستا مسکراتا مجمع چاہتا ہوں. زندہ دل انسان ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں. اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کام بولوں اور کام کروں.
मेरी तकरीर में न लतीफ़े होते हैं, न चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने रुलाने घुमाने वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। और करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई है। जैसे आप डिमांड करते हैं ना कि मुकर्रिर जब माइक पर आए तो हमारे दिल की गहराई में डूब जाए, हमारे सारे शौक पूरे कर दे, हमारी सारी फरमाइशें पूरी कर दे और ऐसी तकरीर करे कि बस मजा आ जाए। तो मुकर्रिर भी चाहता है कि जब मैं स्टेज पे आऊं ऐसे चेहरे मुझे खिलते खिलाते नजर आए कि मुझे भी मजा आ जाए। एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी आदत है कि मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा सरवरे कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अथर व मुतहर अरफा व आला बरतर व बाला नामी नामी और इसमें गरामी से करता हूँ। इसलिए जब स्टेज वाले बोल पड़े तो मजमा खुद ब खुद बोल जाएगा। हालांकि ये रोटी डबल खाते हैं, बोलते फिर भी नहीं, इसलिए कि खुद खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने कहा कि मेरे पैगंबर, मेरे हबीब और लाडले महबूब और महजबीन हसीन और नाज़नीन पैगंबर, मेरा तुझसे ये वादा है, ये अहद व इक़रार मीसाक व पैमान है कि सरज़मीने कायनात के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस पहाड़ के पत्थर पर, जिस पानी की लहर पर, जिस शबनम के कतरे पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के वरक पर, जिस कलम की नोक पर तेरा जिक्र आएगा, मैं रहमत की बारिशें बरसा दूंगा। इसकी रिपीट करूंगा। तो मैं भी चाहता हूं कि उसी पैगंबर का जिक्र पाक करूं और उसी से बात का आगाज करूं ताकि अल्लाह मेरे और आपके दिलों पर भी अब्र रहमत की रिमझिम बरसा दे। मेरे दोस्तों, कायनात के रब ने इस कुर्रे अर्ज पर पूरी तवज्जो चंद जुमले देना चाहूंगा। इस कुर्रे अर्ज पर लाखों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा किया, फिर उन मखलूक़ात में ज़मीन आसमान, हवा फजा खला का निज़ाम, नबातात जमादात, दरिंद परिंद चरिंद, इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी सूरज चांद सितारे सयारे नुजूम कवाकिब शम्स कमर हजर शजर बहर बर शामो सहर नूरो बशर जन्नत हुरो गिल्मा मुख्तलिफ मखलूक़ात थी, लेकिन अल्लाह ने उन सारी कायनात की मखलूक़ात में से इंसान को चुनकर पूरी कायनात की मखलूक़ात का सरदार बना दिया। पूरी कायनात की मखलूक़ात का सरदार बना दिया। फिर कायनात के रब ने पूरी कायनात की मखलूक़ात में से जब इंसान को यानी बनी नोए इंसान को चुना तो फिर अल्लाह ने बनी नोए इंसान में भी खरबों की तादाद में इंसान पैदा किए। तो अल्लाह ने फिर उन सारे इंसानों में 1,24,000 अंबिया की जमात को चुनकर सारी कायनात के इंसानों का सरदार बना दिया। फिर 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने 313 रसूलों को चुनकर
उन 1,24,000 अंबिया का सरदार बना दिया। फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुनकर उन 313 रसूलों का भी सरदार बना दिया। फिर उन 10 उलुल अज़म रसूलों में से अल्लाह ने 4 साहिब किताब अंबिया और रसूल को चुनकर उन 10 का भी सरदार बना दिया। फिर उन 4 में अल्लाह ने तेरे और मेरे पैगंबर सरवरे कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फखरे दो आलम आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुनकर सारी कायनात के नबियों पैगंबरों रसूलों का सरदार बना दिया। बिल्कुल इसी अंदाज में हू बहू रू बरू सू बसू सेम टू सेम अल्लाह ने जैसे पूरी कायनात में इंसानियत को चुना और फिर इंसानियत में अल्लाह ने जमाते अंबिया को चुना। फिर जमाते अंबिया में अल्लाह ने 313 रसूलों को चुना। फिर 313 रसूलों में अल्लाह ने 10 उलुल अज़म अंबिया को चुना। फिर 10 उलुल अज़म अंबिया में अल्लाह ने 4 साहिब किताब रसूलों को चुना। फिर 4 साहिब किताब रसूलों में जनाब अहमद मुश्तबा को चुना। बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने सारी कायनात के नबियों की उम्मतों में भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना। फिर उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा में भी अल्लाह ने 1,54,000 असहाबे मुस्तफ़ा को चुना। फिर 1,54,000 असहाबे मुस्तफ़ा में अल्लाह ने 313 असहाबे बदर को चुना। फिर 313 असहाबे बदर में अल्लाह ने 10 अशरा मुबशरा को चुना। फिर 10 अशरा मुबशरा में अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन को चुना। फिर उन 4 खुलफाए राशिदीन में यारे हारे पैगंबर रफीक हिजरत रफीक कौसर रफीक जन्नत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को चुनकर नबी की पूरी उम्मत का सरदार बना। तुमने क्या समझा सिर्फ मुकर्रर को पसीना पसीना करोगे? अगर ऐसे खस्सी नारे लगाने हैं तो फिर मौलवी को वही बुलाया करो। आपने कहा मौलवी साहब नारा नारे तकबीर इस्मत मुस्तफा जिंदाबाद इस्मत साहब जिंदाबाद इस्मत सिद्दीक अकबर जिंदाबाद नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, मैं मजीद गड़बड़ कर गया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। मैं मजीद उसको शॉर्टकट करते हुए उन्वान को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं दूसरे अंदाज में। ये मैंने पहला अंदाज बताया कि कायनात के रब ने जैसे अंबिया को चुना वैसे सहाबा को चुना। फिर जैसे अंबिया में रसूल को चुना वैसे 313 असहाबे बदर को चुना। फिर जैसे 313 रसूल में 10 उलुल अज़म अंबिया को चुना वैसे जनाबे 313 असहाबे बदर में 10 अशरा मुबशरा को चुना। फिर जैसे 10 रसूल में 4 साहिबे किताब रसूलों को चुना वैसे अशरा मुबशरा में 4 खुलफाए राशिदीन को चुना। फिर जैसे 4 साहिबे किताब रसूल में आमना के दुर्रे यतीम को चुना बिल्कुल वैसे 4 खुलफाए राशिदीन में अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को चुना। अब दूसरे अंदाज में मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने जब तौरात और इंजील ज़बूर और कुरान का मुताला किया तो मैंने देखा कि कायनात के रब को हर 9 में 4 पसंद आए और उन 4 में एक सरदार पसंद आया। कायनात के रब ने जब मखलूकात पैदा की तो मखलूकात तो बहुत थी लेकिन उन सारी मखलूकात में अल्लाह ने 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक मखलूक को अल्लाह ने इंसान कहा, एक को अल्लाह ने हैवान कहा, एक को अल्लाह ने जिन्नात कहा, एक को अल्लाह ने मलाइक कहा। फिर उन 4 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को चुनकर सारी मखलूकात का सरदार बना दिया। फिर इंसानों के बाद अल्लाह ने मलाइक भी पैदा कर दिए तो मलाइक भी अरबों और खरबों की तादाद में थे पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक फरिश्ते को अल्लाह ने जिब्रील अमीन कहा, एक को अल्लाह ने मीकाईल कहा, एक को अल्लाह ने इसराइल कहा,
शोहदा कहा, एक तबके को कुरान ने मिनस सालिहीन कहा। फिर उन 4 तबकों में अल्लाह ने अंबिया के तबके को चुनकर पूरी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। फिर इससे भी और आगे चल, कायनात के रब ने दुनिया में किताबें भी नाजिल कर दी। किताबें तो 123 थी, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने तौरात कहा, एक को अल्लाह ने इंजील कहा, एक को अल्लाह ने ज़बूर कहा, एक को अल्लाह ने कुरान कहा। फिर उन 4 किताबों में अल्लाह ने कुरान को चुनकर सारी किताबों का सरदार बना दिया। उससे भी और आगे चल, कायनात के रब ने जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया में दिन रात और महीने भी पैदा कर दिए। दिन तो साल के बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 दिनों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक दिन को अल्लाह ने यौम जुमा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम अरफा कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम फितर कहा, एक दिन को अल्लाह ने यौम सुहा कहा। फिर उन 4 दिनों में अल्लाह ने यौम अरफा हज के दिन को चुनकर पूरे साल के दिनों का सरदार बना दिया। फिर दिनों के बाद अल्लाह ने रातें भी पैदा कर दी। रातें भी साल की बहुत, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक रात को अल्लाह ने शबे कदर कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे जायजा कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे अरफा कहा, एक रात को अल्लाह ने शबे बरात कहा। फिर उन 4 रातों में अल्लाह ने शबे कदर को चुनकर सारे साल की रातों का सरदार बना दिया। फिर रातों के बाद अल्लाह ने महीने भी पैदा कर दिए। महीने तो साल के 12, पर अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम कहा, एक को अल्लाह ने रजबुल मुरज्जब कहा, एक को अल्लाह ने शबानुल मौसम कहा, एक को अल्लाह ने रमजानुल मुबारक कहा। फिर उन 4 महीनों में अल्लाह ने रमजान को चुनकर सारे महीनों का सरदार बना दिया। इससे भी और आगे चल, कायनात के रब ने दुनिया में अपने घर भी बनवाए। अल्लाह के घर को हर गली कूचों बाजारों सारा में, लेकिन अल्लाह ने उन घरों में भी 4 घरों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक घर को अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा, एक घर को अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस कहा, एक घर को अल्लाह ने मस्जिद नबी कहा, एक घर को अल्लाह ने मस्जिद कुबा कहा। फिर उन 4 घरों में अल्लाह ने बैतुल्लाह को चुनकर सारे घरों का सरदार बना दिया। कायनात के रब ने फिर दुनिया में इमाम भी पैदा किए। इमाम तो बड़े आए, मगर अल्लाह ने उन सारे इमामों में भी 4 इमामों को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा कहा, एक को अल्लाह ने इमाम मालिक कहा, एक को अल्लाह ने इमाम शाफी कहा, एक को अल्लाह ने अहमद इब्न हंबल कहा। लेकिन उन 4 इमामों में तेरे और मेरे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा को चुनकर इमामों का सरदार बना दिया। बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब ने अपने नबी को सहाबा भी अता किए। सहाबा तो 1,54,000 थे, लेकिन अल्लाह ने उनमें भी 4 को चुनकर पूरी दुनिया में नुमाया कर दिया। एक को सिद्दीक़ अकबर कहा, एक को फारूक आज़म कहा, एक को उस्मान गनी कहा, एक को अली हैदर कर्रार कहा। तो फिर उन 4 सहाबा में अल्लाह ने यारे रात, रफीक मज़ार, रफीक हिजरत, तैयबे कायनात, ताहिरे कायनात, अतीके कायनात, अफीफे कायनात, हबीबे हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाद अबू बकर को चुनकर नबी के सारे सहाबा का सरदार बना। तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा के हमसफर। नारे का जवाब जोर से दे, मुस्तफा के हमसफर। ये जो पीछे बांग्लादेश वाले बैठे हैं, इनको रात को खाना नहीं मिला घर से या इधर से? कुछ मरीज टाइप लगते हैं मुझे, और मैं मरीजों से बात नहीं किया करता। जो थका हुआ वो उठ के घर चला जाए ना। जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह रसूल और सहाबा का जिक्र हो, और तुम्हारी जान में जान ना हो, उधर कहते हो जान भी कुर्बान है। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़
मैं कहा करता हूँ, मेरे नारे नहीं, मेरा नाम याह्या है। पढ़े लिखे मौलवी से पूछना, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बड़े बड़े मुर्दाबाद हो गए मुझे मुर्दा करते करते। इसलिए अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है, इसलिए इनको जिंदा करो। ये जो रात के 12 साढ़े 12 बजे टिन हो गए, इनको जिंदा करो। तो जो है इनकी कह दो मलंगों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली मेरे दोस्तों, अब तक मैंने आपका टेम्परेचर चेक किया, अब मैं मौजू शुरू करता हूं। करूं? ये सारे गुंडे थके दो, पूरी तवज्जो रहे। चलो आज मौजू शुरू करता हूं, वाइंड अप फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। मैं कश्ती को जरा दरिया में उतार तो दूं, चलो एक लहर तो अबूर कर जाऊं। गुफ्तगू की इब्तदा, मौजू की इब्तदा मैं इस जुमले से करना चाहता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद बैठे हैं, मास्टर मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह। 1975-76 में मैं इनसे पढ़ता था मुजफ्फरगढ़ में, जब आप में से बहुत सारे यंग मैन अभी पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी। पूरी तवज्जो रहे। वो मेरे साथ बैठे हैं, उनकी दुआएं लेने के लिए मौजू को शुरू कर रहा हूँ, और शुरू इस जुमले से करना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो चाहूंगा। जो दुनिया में आकर, जो 2-4 बोल पढ़ो, जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे। पूरी तवज्जो करना, एक नया जुमला तुम्हारी नजर करने चला। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। चलो जिंदा जिंदा, मरीज ना बोले, सेहतमंद बोले। मैं कौन पूछा, मेरे पास इसे आपको रोक दाई सेहतमंद की है। अलें दे दो, हजूर की हदीस है, उलमा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह तरोताजा रख उसके चेहरे को जो मेरी बात लोगों तक पहुंचाए। रोजाना हम बात पहुंचा रहे हैं, तो कैसे ना तरोताजा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप भी तरोताजा रहना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कहते रहो। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। पूरी तवज्जो। और जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। अब यहां तक तो आपने बहुत दफा सुना होगा। मैं ज़ौक़ अब्बासी का एक और हीरा देना चाहता हूं। सारे कहोगे तो फिर बोलो, फिर रिपीट करता हूं ताकि सबक याद हो जाए। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। और जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। करोड़ रानी संभालो, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक इंजॉय करते रहोगे। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। जो उस नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। और जिसकी रब गवाही दे, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और जिसकी रब गवाही दे, उसे अल्लाह ने कहा था ना, कद समी अल्लाह, अल्लाह ने कहा था महबूब मैं गवाही देता हूं, अबू बकर सच्चा है। सारे सहाबा सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक अकबर है। यही तो वजह है कि अकबर क्यों है। हालांकि जिस सहाबी ने तस्दीक की, सिद्दीक बन गया, मगर ये सिद्दीक अकबर क्यों बना? कई वजूहात हैं, मैं सारी बयान नहीं कर सकता, ना वक्त का तकाजा है, ना आप इतना बेदार हैं। लेकिन उनमें से एक वजह मैंने आपको बताई कि जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे, उसे नबी कहते हैं। जो नबी की गवाही दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। जिसकी रब गवाही दे, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। अब आओ उसी सिद्दीक का तारुफ मैं कुरान से शुरू करता हूँ। शुरू नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। शुरू कर रहा हूं बात कायनात के रब में। काश आप जिंदा बैठे होते तो आज मेरा मूड था कि मैं बोलता, मगर
कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत ग्रेवी। कुरान में अल्लाह ने, तवज्जो मेरी तरफ, कुरान में बिठाओ उस टप्पी को, वो भी गाओ उसे। क्योंकि मुलवाड़ी ये जुरत कर सकती है, क्यों उधर सिर का थोड़े रनने की जुरत है, अगर मोर भी रन नहीं दो चलो अगू तो घर में ऐसी। कुरान में अल्लाह ने, और तो जाग गए हो, इसे कहानी दिला था, जाग गए। कुरान में अल्लाह ने अपने एक यार का जिक्र किया। जागो ताकि मैं जागने वाली गुफ्तगू। कुरान में अल्लाह ने अपने एक यार का, या शेख इधर देखो टोपी पहन, या शेख तबसरे तक ये बात में कल बट्टा ला गिरा यार, तब एक देखो तो सीधे नहीं रहे सोनी चले देवजन बेहोश थी। अल्लाह ने जगाने वास्ते कितना बड़ा पसी जब मैं इधर तो नहीं नींद तो उठो इधर एक बजे मोटे से डटे को। अल्लाह ने कुरान में अपने एक यार का जिक्र किया, और कैसे किया, किन अल्फाज से किया, पूरी तवज्जो करना चाहिए अफजल साहब, कैसे किया, किन अल्फाज से किया। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अब तवज्जो करना, इस बात को खोलना चाहता हूँ, इस गुलदस्ते के फूलों को तोड़ना चाहता हूँ, फूलों की पत्तियों को अलग करना चाहता हूँ, पत्तियों की महकों में से एक महक देना चाहता हूँ। अल्लाह ने अपने यार को सिद्दीक कहा, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। नबी और भी है, लेकिन सिद्दीक इब्राहीम को कहा, खलील इब्राहीम को कहा। अब अल्लाह ने अपने यार को नबी सिद्दीक कहा और हुजूर ने अपने यार को सिद्दीक कहा। आओ अब इन दोनों में मुमासलत तो देखें, मुताबिकत तो देखें, तत्बीक तो देखें, वजह तमसील तो देखें कि वजह क्या है। अल्लाह ने भी अपने यार को सिद्दीक कह दिया, हुजूर ने भी अपने यार को सिद्दीक कह दिया, क्यों, वजह। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इब्राहीम कैफ़ कुन्ता खलीला, तो अल्लाह का खलील कैसे बना। खलील यार को कहते हैं, अरबी में यार के लिए बहुत सारे लफ्ज़ है, खलील भी यार है, हबीब भी यार है, रफीक भी यार है, हाँ सदीक भी यार है, मुख्तलिफ अल्फाज है, लेकिन अल्लाह ने जो लफ्ज़ चुना ना वो लफ्ज़ सिद्दीक चुना और दूसरा लफ्ज़ खलील चुना। तो किसी ने पूछा, इब्राहीम कैफ़ कुन्ता खलीला, इब्राहीम तुम अल्लाह के खलील कैसे बने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बज़लतु नफ्सी लिन्निरान व वलदी लिलकुरबान व माली लिज़ैफ़ान व क़ल्बी लिर्रहमान नामना खलीलुर रहमान। मुझसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह का यार कैसे बना, खलील कैसे बना, सिद्दीक कैसे बना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे रब जो जो मांगता गया मैं आंखें बंद करके देता गया। बज़लतु नफ्सी लिन्निरान, अल्लाह ने कहा जान दे, अल्लाह ने कहा जान दे, मैंने आग में पेश कर दी, छलांग लगा दी। अल्लाह ने कहा माल दे, मैंने उसके नाम पे लुटा दिया। अल्लाह ने कहा बच्चा दे, मैंने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी। अल्लाह ने कहा दिल दे, मैंने दिल उसके हवाले कर दिया, दिल उसके हवाले कर दिया। आज एक और बड़ी बात करता जाऊं, शायद जिंदगी में कभी आपने सुनी हो, पॉसिबल, मगर 99% लोग तो शायद पहली दफा सुनेंगे। ये जो अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना व क़ल्बी लिर्रहमान, कि अल्लाह ने मुझसे दिल मांगा, मैंने दिल रब के हवाले कर दिया। पता है फलसफे का, कुर्बानी का फलसफा, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने प्यारे चहीते लाडले बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी क्यों चलवाई। बंद कर दे, इमरान खान ना हो गया था, हार्ट लाइन पे भी कुछ फोन आते हैं ना,
रात को 12 बजे के बाद। पूरी तवज्जो रहे, तवज्जो है इनके, कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब ने मुझसे दिल मांगा, मैंने रब के हवाले कर दिया। यही फलसफा कुर्बानी है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत में मैं वो मस्त मगन थे। अल्लाह की हमदो सना तमजीद और तकदीस और तारीफ और तामीद और तस्बीह में मैं वो मस्त मगन थे। सामने से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम गुजरे, सामने से जनाब इस्माइल गुजरे। और कौन इस्माइल? जो नबी का बेटा, खुद नबी, सैयदुल अंबिया का दादा। हुस्न जमाल का आलम क्या होगा? खूबसूरत बेटा जो 90 साल की दुआओं के बाद मिला, कितना प्यार होगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत में बैठे, सामने से जनाब इस्माइल गुजरे, नजर उनकी तरफ झपकी और दिल में उनकी तरफ प्यार बढ़ने लगा, मोहब्बत बढ़ने लगी, कशिश होने लगी, अट्रैक्शन होने लगी। अल्लाह को इतना भी पसंद नहीं आया, इतना भी कि खलील यार मेरा दिल तूने मुझे दिया और तेरे दिल में तेरे इस मासूम बेटे की मोहब्बत क्यों जाग पड़ी। अब छुरी उठा, मेरे नाम पे इसको हाथों से सिपा कर। सिर्फ इतनी सी बात है। आगे भी इब्राहिम था, ये नहीं कहा अल्लाह 90 साल मंदरियां वला दी वला जिंदा, सिर्फ ख्वाब देखा, आर्डर भी नहीं हुआ, जिब्रील भी नहीं आया, झलक ख्वाब। सुबह उठ के बेटे से कहा, बेटे ने कहा या अबत इफल मा तुमर सताजिदी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब कर। इब्राहिम ने जाके छुरी चला। मौजूए सुखन पे आता हूं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का खलील तब बना कि अल्लाह मुझसे जो मांगता गया मैं आंखें बंद करके, बोलो, आंखें बंद करके देता गया। अल्लाह ने जान मांगी, मैंने चिखे में पेश कर दी। उसने औलाद मांगी, मैंने छुरी चला दी। उसने माल मांगा, उसके नाम पे लुटा दिया। उसने दिल मांगा, उसके हवाले कर दिया। जब सब कुछ लुटा चुका तो फिर रब ने मुझे अपना खलील, अपना यार बना लिया। आओ इधर अबू बकर से पूछते हैं जिसके लिए पैगंबर ने कहा लोग मुत्तखज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। अगर मैं रब के बगैर किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर इस लायक था कि मैं उसको अपना खलील बना लेता। अब आओ अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर तुझे कैसे सिद्दीक की और खलील की तमसील मिली? तो अबू बकर भी ज़बान हाल से कहते हैं अल्लाह इब्राहिम से जो मांगता गया वो आंखें बंद करके देता गया। मोहम्मद मुझसे जो मांगता गया मैं भी आंखें बंद करके देता हूं। जो कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी वही सेम टू सेम कुर्बानी जनाब सिद्दीक अकबर ने दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली कुर्बानी दी, वतन छोड़ के हिजरत करने की। इब्राहिम ने वतन छोड़ा, बाबल से निकलकर मक्के आए। इब्राहिम की सुन्नत अदा करते हुए वही इम्तिहान अबू बकर ने भी दिया। मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। इब्राहिम ने जब हिजरत की बीवी बच्चे साथ, अबू बकर ने जब हिजरत की बीवी बच्चे नहीं मोहम्मद साथ। इब्राहिम ने जब हिजरत की बाबुल से मक्के आए, आके अल्लाह का घर बनाया बैतुल्लाह। अबू बकर ने जब हिजरत की मक्का छोड़ के मदीने आए तो भी अल्लाह का घर बनाया मस्जिद नबवी। अब इब्राहिम ने औलाद पेश की छुरी के नीचे, अबू बकर ने तैयबा कायनात पेश की पैगंबर के कदमों में। जनाब इब्राहिम ने जान पेश की आग में, नार में, जिसके लिए कुरान ने या नारो कूनी बर्दो व सलामा कहा था। इब्राहिम ने जान दी नमरूद की नार में, अबू बकर ने जान हथेली रखी हिजरत की गार में। नार में आग थी, गार में नाग था। वहां भी दुश्मन, वहां भी दुश्मन, वहां भी रब ने बचाया,
यहाँ भी रब ने बचाया। उस नार का जिक्र भी कुरान में, इस गार का जिक्र भी कुरान में। उस नार के बाहर भी तौहीद का दुश्मन नमरूद था, इस गार के बाहर भी तौहीद का दुश्मन अबू जहल था। हाँ, उस गार को, उस नार को अल्लाह ने या नारू कूनी बर्दम व सलामा कहकर ठंडा किया, और इस गार में अल्लाह ने ला तहज़न इन्नल्लाह माना कहकर ठंडा किया। अब इब्राहिम ने अपना माल पेश किया अल्लाह के नाम पर। अबू बकर की हिस्ट्री पढ़ो, अबू बकर ने भी अपना सारा तन मन धन जो कुछ था सारा का सारा नबी के कदमों पे लुटा दिया। लुटाया या नहीं? ऐसा मौका भी आया कि अबू बकर घर की दीवारों पे हाथ फेर रहा है कि कोई सुई धागा ना बच जाए, वो भी दे दूं ताकि किसी मुजाहिद के कपड़े सिल जाएंगे। और ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर ने चंदा मांगा, अबू बकर के पास देने को कुछ नहीं। अबू बकर ने कपड़े उतारे, टाट उठाया जमीन से, और वो टाट चादर बनाई, दो चादरें इहराम की तरह, एक नीचे एक ऊपर, टाट पहना, कपड़े जाकर बाजार में बेचे, जो पैसे मिले नबी के कदमों में रखे। वो सिद्दीक जिसने इब्राहिम की तरह अपना सब कुछ लुटा दिया। आओ फिर करो लाली संभालो, दोनों का इनाम भी देखो। जैसे इम्तिहान सेम टू सेम था, वैसे इनाम सेम टू सेम था। जब इब्राहिम हर इम्तिहान में पास हो गया तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम को इमामत अता कर दी। और जब सिद्दीक हर कुर्बानी दे चुका, हर इम्तिहान में पास हो चुका, तो सिद्दीक को भी नबी ने इनाम यही दिया। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, उसको भी इनाम में इमामत मिली, इसको भी इनाम में इमामत मिली। तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। नारा तकबीर। आखिरी एक पैरा दे के बात वाइंड अप करने चला हूं। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी, हिस्सा एक छोटा सा, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, उसकी मैंने मुख्तसर आपको झलक दी। दूसरी मैंने आयत पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। अब ये जो माअहू है ना, उलमा मुफस्सिरीन मुहक्किकीन मुदक्किकीन मुअल्लिफीन मुदर्रिसीन मुहक्किकीन जानते हैं कि इस माअहू का मिस्ताक अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर है। सब कह दो जनाब सिद्दीक, सारे बोलो जनाब सिद्दीक अकबर। अब आओ मैं अपने अंदाज में इसका तर्जुमा करूं कि कायनात के रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा रसूल, वल्लज़ीना माअहू, और जो इसके साथ है, साथियों में जब मैं पैगंबर का नक्शे पा देखता हूं तो मुझे नबी के नक्शे कदम पर सबसे आगे आगे चलता हुआ अबू बकर नजर आता है। क्यों कि पैगंबर ने जब ऐलान नबुव्वत किया,
कुरान ने कहा वल्लज़ीना माअहू, जो हमेशा हर वक्त हर आन हर पल नबी के नक्शे कदम पे है और साथ साथ चल रहा है। जहां जहां से मुस्तफा गुजरे वहीं वहीं से सिद्दीक अकबर गुजरते गए। इसी पे बस नहीं, हुजूर की वफात के बाद जिस रोजे में हुजूर को दफन किया गया, अबू बकर को भी उसी रोजे में दफन किया गया। हुजूर की वफात के बाद हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जनाजा रात को उठा। सिद्दीक की वफात के बाद सिद्दीक की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका का जनाजा भी रात को उठा। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया। तो अबू बकर की वफात के बाद अबू बकर के नवासे अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद किया गया और हजरत हुसैन का भी सर काटा गया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर का भी सर काटा गया। हुसैन भी मसले खिलाफत पे शहीद हुए, इब्न जुबैर भी मसले खिलाफत पे शहीद हुए। इसी को कुरान ने कहा वल्लज़ीना माअहू, मेरे नबी का सबसे सच्चा पक्का ठक्का साथी देखना चाहते हो तो फिर सिद्दीक अकबर का चेहरा देखो। इसी को कुरान ने कहा वल्लज़ीना माअहू, वल्लज़ीना माअहू, वो सिद्दीक, वो अबू बकर जिस पे आज कुछ तबर्राई, धुएंदार मलंग, अफयूनी, चरसी, वल्द नामालूम या सनाफ आल मोहल्ला सिद्दीक पे बकते हैं। तबर्रे का बाजार गर्म किया जाता है, कभी टीवी पे, कभी मजलिस में, कभी महफिल में, कभी सोशल मीडिया पर। सिद्दीक वो सूरज है जिसकी तरफ लाखों नहीं करोड़ों मलंग भी थूकना चाहे तो थूक उनके मुंह में आएगा, सिद्दीक चमकता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। और आज एक बात और मैंने करनी थी, वक्त हालात और मौसम को देखकर वाइंड अप कर रहा हूं कि सिद्दीक खत्म नबूवत का सबसे पहला मुजाहिद था। कहो बेशक, सबसे पहला मुजाहिद खत्म नबूवत का कौन? सिद्दीक अकबर। क्योंकि सबसे पहले जिहाद का ऐलान खत्म नबूवत के मौजू पर सिद्दीक अकबर ने किया था या नहीं? और कितने सहाबा शहीद हुए उस वक्त। पता चला ना कि खत्म नबूवत इतना अहम इशू तो है कि हुजूर की पूरी जिंदगी में जितनी जिहाद हुए उन सब में मिलाकर भी इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितना एक उस जंग में हुए जो जंग सिद्दीक अकबर ने खत्म नबूवत के मौजू पे मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ी। सबसे ज्यादा कुर्बानी नबी के सहाबा ने जो दी वो खत्म नबूवत के मसले पर दी। तो मैं आज उस सिद्दीक अकबर की मुजाहिदे खत्म नबूवत की अज़मत को सलाम करते हुए करोड़ वालों तुम्हें भी जगाना चाहता हूँ, तुम्हें भी मुजाहिदे खत्म नबूवत बनाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पास की और पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली करो और जो नबी की तौहीन करे उसकी सजाए मौत खत्म करो। तो मैं सलाम अकीदत करना चाहूंगा आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत वालों को और कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम बदले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को कि जिसने अपनी दूरबीन नजरों से आज से 3 साल पहले भाग लिया था कि कुछ लोगों को एक मखसूस एजेंडे पे लाया जा रहा है। तो उसमें 2018 से लेकर अब तक पूरे मुल्क में कराची से लेकर पिशावर तक 15 खत्म नबूवत मिलियन मार्च करके पाकिस्तान के मुसलमानों को जगाकर चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया कि मुसलमानों हमारे होते हुए हम अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त तकबीर, अज़मत मुस्तफा, आतार खत्म नबूवत, आतार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। आज अगर आपको कायदीन मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत या कायदीन जमीयत खत्म नबूवत के इस कानून पे पहरेदारी के लिए बुलाएं तो
तो फिर सर पे कफन बांध के निकलोगे? ऐसे नहीं, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके वादा करो। नारे तकबीर, नारे